So the next question that we have is question number 6, which looks like this. So in the left hand side we have cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus sine pi by 4 minus x, and sine pi by 4 minus y. So as you can see here, we have same angles in both the expressions that we have. So if we consider pi by 4 minus x as a and pi by 4 minus y as b, this expression can be rewritten as cos a cos b minus sin a sin b, and this is falling under an identity that is cos a plus b. So just like sin a plus b had something, similarly cos a plus b is what? Cos a cos b minus sin a sin b. So we can write cos, if we put a, that is pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y, it can be rewritten as, see, pi by 4 plus pi by 4 is going to give you pi by 2 minus x minus y. Now if I take the minus sign common from both of them, this will become plus. Now look after the thing very carefully. Just one single step and we are done. See, it is pi by 2. And I have told you that along the y-axis, the function changes. So the cos will become sine x plus y, right? Now pi by 2 minus x plus y will be somewhere in the first quadrant. And in the first quadrant, the sign of cos, rather in the first quadrant, the sign of all trigonometric quantities is positive. So this one will be also positive, right? And that is nothing but it is our right hand side. As simple as that. Okay. So if you draw this small coordinate axis, it becomes very easier for you to do the sums. Now see here in the next question, that is question number 7, we have tan a plus b and tan a minus b. So we will use the formula here. The formula for tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. This is the formula for tan a plus b, which I have used for the numerator. Now for the denominator, tan a minus b, the formula is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. Okay, now let us simplify this one. See, tan pi by 4 is 1 plus tan x, right, divided by, it will be 1 minus, again tan pi by 4 is 1, so it will be 1 minus tan x, whole divided by, it is 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Now as you know, if you have a fraction divided by another fraction, then the lower fraction in the denominator will reciprocate itself and we will get 1 plus tan x whole square divided by 1 minus tan x whole square, which can be also rewritten as the form that is given in our right hand side, that is 1 plus tan x divided by 1 minus tan x whole square, right? And that is our right hand side. Let us move to the next question, that is question number 8. Here you are going to see one of the variations of the identities that we are studying. See,
cos pi plus x. Let us try to find out the value of each one of them separately first. So cos pi plus x. So pi will be along the x axis, so there will be no change. There will be no change in the function. Now tell me something. Pi plus x will be somewhere in the third quadrant, right? It will be somewhere in the third quadrant, and as a result of which, in the third quadrant, which one is positive? All sine tan cos, right? So in the third quadrant, tan is positive. So in the third quadrant, cos will be negative, so it will be minus cos x. As simple as that. Now let us try to find out cos minus x. cos minus x. सर ये कहाँ से आया? देखो, मैं 0 और 2 पाई को दोनों को x एक्सिस पे लेता हूँ ना, तो देखो अगर मेरे पास ये cos माइनस x है, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो उसमें जो है x या एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो उसका मतलब जो है इन दैट केस द वैल्यू इज negative. The value of angle will be negative. So minus x means it is moving in this direction. तो जैसे ही यहाँ से minus x इस तरफ मूव किया तो it is in the fourth quadrant. It is in the fourth. और movement किस along हो रहा है? Along the x axis. So the function will remain constant. Function तो change नहीं होगा यहाँ पे. और fourth quadrant में all sin tan cos. Cos यहाँ पे positive होता है. Cos यहाँ पे होता है positive. तो ये sin भी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है. अच्छा, और एक और देखो, साइन पाई माइनस एक्स. सर पाई है इसीलिए फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा. पाई माइनस एक्स मतलब ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. बहुत बढ़िया. एंड लेट अस मूव टू द लास्ट वन, दैट इज कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स. कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स. सर पाई बाई 2 है इसीलिए साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस जो है साइन में चेंज हुआ है. पाई बाई 2 प्लस एक्स विल बी अगेन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2 है, उसके साथ कुछ एक छोटा एंगल आप ऐड करोगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का एंगल क्या होता है, या कॉस का साइन क्या होता है? कॉस का साइन नेगेटिव होता है, सो इट विल बी माइनस साइन एक्स. तो ये पूरा जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ. सो लेफ्ट हैंड साइड यू हैव कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स. तो अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, कॉस पाई प्लस एक्स का वैल्यू था माइनस कॉस एक्स, cos of minus x was only cos x, divided by sin pi minus x was plus sin x into cos pi by 2 plus x का वैल्यू था minus sin x. माइनस साइन कैंसल्स आउट, cos by sin होता है cot, यहाँ पर 2 है तो it will be cot square x, and that is our right hand side. सिंपल सा क्वेश्चन था. अगर आप इस चीज़ को सेपरेटली क्वाड्रेंट देख के आप सॉल्व कर लेते हो. यही सेम जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करने वाले इन द नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 9. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x. ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और आपको प्रूफ करने बोला है कि ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 1 होगा. पहली बात तो ये 3 पाई बाई 2 है, मतलब फंक्शन चेंज होगा, कॉस हो जाएगा साइन, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बैठेगा, राइट. अब देखो ये जो आपका 3 पाई बाई 2 प्लस x है, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? इट विल फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ये जो 2 पाई प्लस x है, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? इट विल फॉल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट.
3 pi by 2 minus x will fall in the third quadrant and 2 pi plus x will fall in the first quadrant। सो यहाँ पे 3 pi by 2 था तो इसीलिए कॉस जो है साइन में चेंज हो गया है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इट विल बी प्लस साइन एक्स, राइट, इन टू। अब यहाँ पे देखो कॉस 2 पाई प्लस एक्स है, राइट। 2 पाई प्लस एक्स जो है, पहले तो बात 2 पाई है तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस तो कॉस ही रह जाएगा। और यहाँ पे सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी प्लस कॉस एक्स इन टू। अच्छा अब देखो ये 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पे कॉट है, तो मैंने क्या बोला था कि 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये जहाँ पे होता है वहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखो tan में चेंज हो गया, tan x हो गया, राइट। अब ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है, ये अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देखोगे ना, ये अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देखोगे, ऐसे क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देखोगे तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी समवेयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉट भी क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी प्लस tan x। एंड इन द सेम वे दिस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई के अलॉन्ग है तो ये कॉट x हो जाएगा। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी ओनली कॉट x। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस वन अ बिट। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टैन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई साइन एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल गिव अस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। गौर से देखना, ये दोनों कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, इट विल बी 1 एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड, दैट इज आवर राइट हैंड साइड, एज सिंपल एज दैट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगा, देख के ही वही लग रहा है, देख के वही लग रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स। तो अगर मैं ले लेता हूँ कि n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू a एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू b, लेट अस सपोज लेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। और ये जो है ये किसका आइडेंटिटी है, इट इज कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी। कॉस a प्लस बी क्या था, वो यहाँ पे हम लोगों ने किया था, राइट। कॉस a प्लस बी, देखो अभी तक लिखा हुआ है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। और कॉस a माइनस बी क्या होता है, साइन a साइन बी प्लस कॉस a कॉस बी। सो आई कैन राइट कॉस, थर्ड ब्रैकेट डाल लेता हूँ यहाँ पे, n प्लस 1 एक्स माइनस n प्लस 2 एक्स, ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, सो इट विल बी कॉस n इंटू एक्स एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, राइट। एन एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया मेरे पास, कॉस माइनस एक्स। फिर से ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं, जितना बार देखेंगे उतना बार कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहेगा। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, राइट। अब माइनस एक्स कहाँ पे आएगा, इट विल बी समवेयर हियर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा जो है हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, राइट। तो जीरो अगर यहाँ पे होता है और अगर माइनस एक्स लिखा है, मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज एक्स यहाँ पे मूव करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, राइट। अच्छा
सिंस 0 पाई 2 पाई ये जो अपना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये कॉस था, कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है अपना, इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज पॉजिटिव होता है? सर ऑल साइन टैन कॉस। यहाँ पे कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर कौन सा क्वांटिटी है? यहाँ पर कॉस ही है, सो इट विल रिटर्न प्लस कॉस एक्स, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज इन ईच क्वाड्रेंट। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आइडेंटिटीज तो रहेगा, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। These are the solutions for question number 6 to 10.